Okay, in the last class, I think we did exercise number 10.3, right? Yes, Hamna, what we were doing in the last class? Ma'am, we completed the exercise 10.3. Third question we have done. Third question. Yes, ma'am. Okay. So today we have to start from here, equal chords and their distances from the center. Okay, right. I think Miraj is not going to join. Just a minute, let me ask him. Okay, anyway, let us proceed further. So what does it say? Now equal chords and their distances from the center. So what was the last theorem we have studied? The last theorem was about, yeah, only one circle can pass. And before that, yeah, this was the converse, and the theorem was that the perpendicular from the center to a chord bisects the chord. ठीक है, दो center से अगर कोई perpendicular chord के ऊपर होता है तो वो chord को दो equal parts में divide करता है. और इसका converse ये होगा कि अगर दोनों parts आपस में equal है तो जो line आ रही है center से that will be perpendicular to the chord, right? Okay. Now let us move further. Mridula, are you there? Yeah, ma'am. Now to start this theorem, first try to understand one thing. Yes. Okay. Now if you have any, now let's say if you have any line, right? And there is a point, any point. So what is the distance of this point from this line? How will you determine? Because from this line, many lines can be drawn. Like this line can also reach this point, right? This line can also reach this point. This line can also reach this point. Then there's a straight line. Then there can be like infinite number of lines, isn't it, Hamna? Now the so the actual length of this point from this line L is the perpendicular distance. So the straight line जो fall करेगी वही इस point का इस line से distance होता है. You have to remember this thing in your mind. ठीक है? It's also written here in your book. The length of the perpendicular from a point to the line is the distance of the line from the point. Is this point clear? So आप अपने scale को, I mean, you cannot measure like you have a line and you have any point, right? Q. Now you want to measure the length of this point from this line M. So you cannot place your scale like this. No. So this distance will be wrong. The actual distance of this point from this line will be the perpendicular distance. All right? Yes, Mridula? Mehraj, have you joined? Yes, ma'am. Okay, right. So Mehraj, have you heard the point? Yes, ma'am. Okay, so any point, if you want to measure the distance, you have to draw a perpendicular, and that perpendicular will be the distance of that point from the line. So you just need to know this thing. So let's move further to a new theorem. So what was the last theorem we studied, Mehraj? Last theorem जो हमने पढ़ा था वो ये कहता था सर्किल में कि अगर कोई भी सर्किल है
और ये आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, ये दिस इज द सेंटर O। तो अगर इस O से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये इस कॉर्ड AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट? दिस वाज द थ्योरम। Yes, ma'am. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसका कन्वर्स ये था कि इफ ऑलरेडी जो कॉर्ड है उसके ये दोनों पार्ट AM इज इक्वल टू MB है, देन OM इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ लेट्स सी न्यू थ्योरम। नाउ व्हाट डज इट से? थ्योरम 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अभी आप कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, जस्ट लुक हियर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल are equidistant from the center. So like this is rough I'm doing, like you have any circle and you have equal chords, like one chord can be this, another chord can be this, both are equal. तो ये दोनों equal distance पे होंगी center से, ठीक है। तो ये distance और ये वाला distance, the perpendicular here and the perpendicular here, so these two distances will be equal. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay, now let us try to prove this theorem, because proof is also asked in the exam. Okay, so how will you do it now? Let me draw a clear figure. All right, so I'm drawing a figure here. Okay, anyway, just look one thing. Its proof is actually not required because it's not there in the book, okay? But I think I'm going to do it because sometimes as a question it can be asked, okay? Let's do it, it's very easy. There's nothing in the proof. So let's draw a circle. Okay, I'm drawing a big circle to make it a bit clear. Now you have two chords here. One chord is this, another chord is this, right? So they're not looking equal, but anyway, they are equal. So AB is equal to CD. Now O is the center of this circle. So I'm just drawing perpendicular on CD, fine. And I'm also drawing one perpendicular on AB. So what is given to me? That the chords are equal. AB is equal to CD. And what we have to prove? We have to prove that O, if I name it P and Q, and this is your O, so OP is equal, sorry, OP is equal to OQ, right? नाउ अब सर्कल का क्वेश्चन में हमेशा एक चीज आप लोग याद रखिए। देखिए, आपने सर्कल से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है? ट्राइंगल्स, राइट? क्वाड्रिलेटरल आई मीन, ठीक है। यस, हमना, मृदुला, प्लीज अनम्यूट योर माइक ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स, इफ आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री, ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स का, तो लाइंस एंड एंगल्स की जितनी भी थ्योरम थी, यू हैव यूज्ड ऑल द थ्योरम्स इन योर ट्राइंगल चैप्टर। देन यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल, राइट महराज? अब जो नेक्स्ट Ma'am. चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल, अब आप क्वाड्रिलेटरल को हमेशा ट्राइंगल्स में डिवाइड कर कर ही सॉल्व कर पाते हैं, राइट? तो लाइक समवेयर यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल, ताकि आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वहां पे यूज कर सकें। ऐसे ही हमने क्वाड्रिलेटरल में किया था और ऐसे ही हम सर्कल्स में करेंगे। क्योंकि सर्कल के अंदर आपको कोई ट्राइंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, वो इसलिए ताकि आप अपने ट्राइंगल को कंप्लीट कर सकें। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अब Yes, ma'am. इसमें आप पता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू डोंट नो एनीथिंग। अब ये तो दो कॉर्ड्स हैं, एक सेंटर है, व्हाट विल यू डू? लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन करके एक ट्राइंगल बना लेते हैं तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, सो द कंस्ट्रक्शन इज, ओके, पहले तो इसमें हाँ, इसमें दो कंस्ट्रक्शन होंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ ये दिया था ना, दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इवन ये जो मैंने ज्वाइन किया है ओपी एंड ओ क्यू, दिस इज ऑल्सो नॉट गिवन। ये लाइन तो मैंने बनाई है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड रखा है। दिस वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो आई राइट इट, दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर्स from the center on AB and CD, right? ओके, एंड नाउ सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? अब ट्राइंगल्स को कंप्लीट तो करना है, तो वी विल जॉइन दिस, ओ ए को ज्वाइन कर लेते हैं और ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाए। नाउ जॉइन ओ ए
and OD. Yes, right Miraj? Is this point clear कि हमने क्यों किया कंस्ट्रक्शन? Yes, ma'am. ठीक है। अब वैसे ये एंगल्स तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री है, बट कॉन्ग्रुएंसी में लिखने में मुश्किल होता है तो हम जस्ट नेमिंग इट 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 नाम दे देते हैं। चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। सो आई एम जस्ट डूइंग द प्रूफ हियर। So just remember what we have to prove. We have to prove that OP is equal to OQ, right? अब ये करने के लिए CPCT से प्रूव हो जाएगा, ठीक है, OP is equal to OQ, बट उससे पहले हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, राइट? चलो हम ना बताओ अब इसमें मैं क्या यूज कर सकती हूँ इफ आई वांट टू शो देम कॉन्ग्रुएंट। व्हाट डू आई हैव नाउ? सो आई एम मेकिंग वन लाइन हियर। बताएं हम ना, टेल मी। मैम AP is equal to QD. AP इज इक्वल टू QD, ठीक है, आपने पिछला थ्योरम यूज कर लिया। QD, यस, ओके। और क्या हो सकता है? ये अभी लिखना नहीं है, ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग हर। यस, बताइए नेक्स्ट व्हाट कैन आई डू? Ma'am, angle POA is equal to QOD. एंगल POA, व्हाई? Ma'am, I use the first theorem. विच थ्योरम? The first one, ma'am. What is the theorem? Please read the theorem. देखो ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होंगे, डोंट यूज दैट, ठीक है। ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है बट ये फिगर ऐसे भी हो सकती है ना, लाइक अब देखो अगर ये तो कॉर्ड ऐसे होती, ये तो मैंने ऐसे करके बना लिया, राइट? और ये आपका सेंटर होता तो ये आपका परपेंडिकुलर होता, ठीक है, इजंट इट? और फिर मैं इसको ज्वाइन करती तो ये ऐसे, आई मीन अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हो तो दे आर नॉट लाइंस, ठीक है मेराज? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, इस फिगर में ये Yes, ऐसे ma'am. लाइंस नहीं है, कॉर्ड तो कहीं भी हो सकता है, ये आपको लग रहा है ऐसा बट दे आर नॉट लाइन, तो हम इसमें वर्टिकली ऑपोजिट वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते। Ma'am, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. इक्वल कॉर्ड्स, अच्छा वो एंगल ऐसे सबटेंड नहीं होता है हम ना, लाइक वो ऐसे सबटेंड हो सकता है, लाइक इफ यू हैव वन सर्कल हियर, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। वेट, सम इशू विद माय पेन, या ओके। If you have a circle, right, and you have a chord, like you have a chord and it's the center, तो आपको सेंटर के लिए अगर ऐसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ऐसे ही कोई दूसरा कॉर्ड है, लाइक यहाँ पे कोई कॉर्ड है और ये भी ऐसे सर्कल बना, लाइक, तो आपको ये ट्राइंगल कंप्लीट चाहिए इस एंगल के लिए। मतलब ये जो दोनों लाइंस है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, इजंट इट? देख रहे हो? बट यहाँ पे कॉर्ड का एक एंड पॉइंट तो ए है और दूसरा एंड पॉइंट तो बी है ना, बट ये वाला एंगल जाके बी से तो ज्वाइन नहीं हो रहा है, ये तो पी पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है हम ना? Okay, ma'am. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. तो इसलिए हम वो वाली थ्योरम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं। यस मृदुला, इज दिस फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या करेंगे और क्या दिख रहा है इसमें? प्लीज थिंक अबाउट इट, कॉन्ग्रुएंसी तो इतना पढ़ चुके हो। मेराज, व्हाट डू यू थिंक? Ma'am, angle 1 is equal to angle 2. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, ये हमने ड्रॉ किया है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। चलो एक और बताओ।
Ma'am, ma'am, AO is equal to OD. Why? Ma'am, because they are radii. They are radii. रेडियाई होंगे ये, हाँ होंगे, वेरी गुड. यस मिराज, क्या सही बोला हमना ने? Yeah. AO इज इक्वल टू OD. यस, क्योंकि ये भी सेंटर से जा रहा है और ये भी सेंटर से जा रहा है, तो ये दोनों तो रेडियाई हो गए. ओके, दैट्स गुड. AO इज इक्वल टू OD. ओके, इवन आई डिडंट नोटिस दैट हमना. आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स इन माय माइंड. ओके, गुड. ऑल राइट, चलो अब तो इजी हो गया. तो आप दोनों ट्राइंगल्स लीजिए. इन ट्राइंगल OAP and triangle OAP, so that means ODQ. ठीक है? Now just write down these things that your, okay, I've done one mistake here. Wait. I cannot use this. Oh, here is the mistake. Why I cannot use this? See, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया. देखो अभी ये okay, try to understand this. Like you have a circle, ठीक है? There is a chord here. ठीक है मिराज? Yes, मृदुला? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब ये सेंटर से इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला. ठीक है, ये A और ये B है और ये आपका पॉइंट P है. तो यहाँ से ये निकलता है दैट AP इज इक्वल टू PB, राइट? मतलब ये सेम कॉर्ड के दो पार्ट हैं, लेकिन ये वाला कॉर्ड तो डिफरेंट है ना, दैट CD इज अ डिफरेंट कॉर्ड. और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला, तो इस अगर ये पॉइंट Q है तो यहाँ से ये निकला कि CQ इज इक्वल टू QD, राइट? अब इससे ये तो प्रूव नहीं हुआ है ना दैट योर AP इज इक्वल टू QD, Yes, है ma'am. है ना? तो ये गलत था. आई मीन आई कैन नॉट राइट इट स्ट्रेट. मतलब ये मेरे को ये पहले प्रूव करके दिखाना होगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, यस, ma'am. हाँ. तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये तो ठीक है, बट एक कॉर्ड का पार्ट दूसरे कॉर्ड के बराबर है, ये हमको पहले प्रूव करना होगा. तो पहले हम ये प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? हम्म चलो पहले तो ये लिखो दैट योर AP इज इक्वल टू PB and like QD is equal to QC. Why? ये हमने अभी थ्योरम पढ़ा है that perpendicular from the center bisect the chord. ठीक है? This was the last theorem. तो ये so we are going to use this information. अब AP plus PB is equal to your complete chord AB, right? ठीक है? अब क्योंकि AP और PB दोनों इक्वल है यहाँ से, तो आई कैन राइट AP प्लस AP इज इक्वल टू AB, फाइन. और आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू AB. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी कॉर्ड के लिए कर लेते हैं. सो योर QC प्लस योर QD इज इक्वल टू योर कंप्लीट कॉर्ड CD. ठीक है, नाउ सिंस QD इज इक्वल टू QC, सो आई कैन राइट twice of QD is equal to CD. Is this clear? Yes, Yes. ma'am. Okay. अब अब ये given है that AB is equal to CD, right? It's given. So I can write twice of QD also equal to AB. अब ये क्यों लिखा है? Because I want to make the right hand side AB on both. So in this equation 1 and this equation 2, so both have the right side AB. तो इसका मतलब कि उनका LHS भी सेम होगा. ठीक है? So from 1 and 2, twice of AP is equal to twice of QD, and just cancel out 2, so you get AP is equal to QD. Now I have got this, which जो हमने directly लिख दिया था, right हमना? Yes, ma'am. Okay, so इसको हम third बोल देते हैं. Now we are going to use it. So we will now prove that the triangles are congruent.
I'm not able to erase today. I don't know. My eraser is not working. Okay. चलो अब congruent करते हैं. तो in your triangle OAD and triangle ODQ. Fine. So now I can write that your AP is equal to QD from third. ठीक है. Now next आपने बता चुके हैं that your angle 1 is equal to angle 2, 90 degree each. Okay, and AO is equal to OD, which are radii. So these triangles are congruent. Is congruent to triangle ODQ, and by CPCT, OP is equal to OQ. ठीक है मिराज? Yes, ma'am. Okay, which criteria is this? SAS, one angle and two sides. Please note it down. और यही आपको प्रूव करना था that your OP is equal to OQ. Have you done? Yes, Mridula, have you done? Please unmute your mic, all of you. I keep on asking and nobody replies. Yeah, ma'am. Hamna? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now you have a theorem. अब आपका converse भी होगा इसका. ठीक है? अब ये theorem आपको क्या बोल रहा था? इस theorem ने बोला कि अगर chords equal हैं तो वो center से equal distance पे हैं. ठीक है? Yes, मिराज? Yes, ma'am. अब इसका converse क्या होगा हमना बताओ. Ma'am, if OP is equal to OQ, then Hmm. E will be equal to CD. वेरी गुड. तो अब इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो वो इक्वल होंगी. यस मिराज? Yes, ma'am. Okay. So let's do the converse also. What's be simple सा है. Here is the converse. So chords equidistant theorem 10.7 equidistant from the center of a circle are equal in length. So this time it is given that the chords are equidistant. ठीक है, उनका center से distance same है और हमें prove करना है कि chords equal है. Let's do it very quickly. Let's draw a figure. I have one figure here. ठीक है, इसमें दो chord बना लेते हैं. You have one chord AB here and कहीं भी CD बना लो. ठीक है, this is your center O. A, B, CD. Now this time आपका जो ये distance है from the center, this distance OP and this distance OQ. This is equal. ठीक है, तो what is given to you? That OP is equal to OQ and you have to prove that your chords are equal. AB is equal to CD. ठीक है, again construction. अब ट्राइंगल तो कंप्लीट करना है. ठीक है, तो वी विल डू वन कंस्ट्रक्शन. हम यहाँ पे OA को ज्वाइन कर लेंगे और OC को ज्वाइन कर लेंगे. सो ज्वाइन OA एंड OC. फाइन. सो लेट्स डू द प्रूफ. अब प्रूफ के लिए देखिए हमको प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, अगर हम पहले ये वाला पार्ट इक्वल प्रूफ कर दें दैट AP इज इक्वल टू CQ. यस हम ना, और इसका हम डबल कर देंगे तो पूरी कॉर्ड इक्वल हो जाएगी. अब ये कैसे प्रूव हो सकता है? वेरी सिंपल. इट कैन बी प्रूव बाय CPCT. यस मेराज? पहले ma'am. हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और CPCT से योर AP विल बी इक्वल टू CQ. फिर हम उसको डबल कर देंगे तो ABCD के बराबर हो जाएगा.
Let's do it. So you take these two triangles. Which triangle? Triangle OAP and triangle OCQ. ठीक है? Now what do you have? Mridula, tell me. मृदुला, टेल मी एटलीस्ट वन थिंग, इसको कॉन्ग्रुएंट OP. दिखाने के लिए. हाँ, मैम OP is equal to OQ. OP इज इक्वल टू OQ. ये कैसे पता आपको? मैम it's given. ओके, ठीक है. OP इज इक्वल टू OQ. ओके, गुड, इट्स गिवन. ओके, and what else I can use here? Ma'am, angle APO is equal to angle CQO. ये कैसे आया एंगल, बताइए. You mean this angle, if I call it angle 1 and I call it angle 2. So angle 1 is equal to angle 2. Why हमना? Ma'am, because it is perpendicular to that line. बट ये तो कहीं नहीं दिया है that it is the perpendicular. ये दिया है कि chords equidistant है सेंटर से. तो आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि ये परपेंडिकुलर है? Ma'am, the second theorem says सेकेंड थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम, रीड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. Yes, please read the statement of the theorem. the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. अभी तो देखो कॉर्ड के बाइसेक्ट की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. और हमें क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया है कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है. इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कि इस कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस और दूसरी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस आपस में इक्वल है, राइट. इसमें परपेंडिकुलर की बात तो कहीं नहीं हुई है. सिर्फ इतना बोला है दैट योर ओपी इज इक्वल टू OQ. यस मिराज? Yes, ma'am. ओके. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी एकदम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात समझाई थी हम ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लुक हियर केयरफुली. अब ये आपके, लेट्स से दिस इज योर कॉर्ड AB, ठीक है. और ये आपका कोई पॉइंट है O, जो इस फिगर में आपका O पॉइंट है. अब आपको इस O से जो AB का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, मैंने आपको अभी समझाया था, स्टार्टिंग में समझाया था ना. लाइक देखिए, AB से O तक जाने के लिए कोई भी लाइन हो सकती है. लाइक दिस कैन बी वन लाइन, दिस कैन बी वन लाइन. एक एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कि ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, एनी लाइन लाइक, ठीक है. लेकिन O का जो डिस्टेंस है AB से, वो उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. यस हम ना. Yes, ma'am. सो दैट इज वाई कभी क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा है कि कॉर्ड का डिस्टेंस उसके सेंटर से, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर, तभी ये कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से. मृदुला, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. यस मिराज? किसी भी Yes, पॉइंट ma'am. का डिस्टेंस कॉर्ड से उसका परपेंडिकुलर ही होता है. दैट इज वाई. सो दैट इज वाई योर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच, ठीक है. एंड नेक्स्ट, अब OA इज इक्वल टू OC, radii. So these triangles are congruent. So your triangle OAP is congruent to triangle OCQ. And by CPCT, okay, which criteria यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे? SAS, ठीक है. And by CPCT, your AP is equal to CQ. लेकिन हमको तो पूरा कॉर्ड चाहिए, AB is equal to CD, right? Yes, हम ना. So we Yes, will ma'am. multiply both side by 2. So 2AP
is equal to 2CQ. अब twice of AP is equal to AB, लेकिन ये कहाँ से आया? ये थ्योरम से आया, राइट? एंड twice of CQ is equal to CD. यहाँ पे अब थ्योरम लिखना पड़ेगा that perpendicular from the center bisects the chord. अब क्योंकि OP सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों जो पार्ट्स हैं कॉर्ड के वो आपस में इक्वल हैं। तो हम अगर उसका डबल कर देंगे तो वो पूरी कॉर्ड के बराबर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव, राइट? प्लीज नोट इट डाउन। Yes, Mridula, done. Miraj, have you done? Yes, ma'am. Mridula, Yes, ma'am. now you tell me, should I do the example or should I leave it for you? Yes, Miraj. Because examples are important, right? Please quickly reply. Do you want me to explain it again or can you do it yourself? Example. Do it myself. Okay. Mridula, Yes, ma'am. should I leave it? Ma'am, we can do it by ourselves. Okay, you can do it yourself. Good. It's already solved in the question. Please go through it. It's a very good question. And in case you are not able to understand it, just let me know in the next class. I'll do it. Now, let us quickly move to exercise number 10.4. Now, what does it say? That, right. Question number 1. Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. Okay, and the distance between their center is 4 centimeter. अच्छा, अब ऐसा ये क्वेश्चन में ऐसा है कि दो सर्कल हैं, ठीक है, और वो आपस में 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखो, इट्स गिवन दैट दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। इसका मतलब दो सर्कल आपस में 2 पॉइंट पे कब इंटरसेक्ट करते हैं? जब ये एक दूसरे को ऐसे लाइक ऐसे हो तभी 2 पॉइंट पे करते हैं ना, राइट? तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। अब ये बोल रहा है कि एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल बड़ा है और एक सर्कल छोटा है। ओके, तो द फिगर इज एक्चुअली लाइक दिस, लाइक यू हैव वन बिग सर्कल, right, and it has a center O. now because ये पूरा जो डिस्टेंस है, now try to understand this thing, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर होगा। यस मिराज? हाँ। बिकॉज इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और लेकिन ये बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि समवेयर हियर, यहाँ पे दूसरे सर्कल का सेंटर हो जाएगा। यस मृदुला? Yes, ma'am. ओके, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट्स ओनली 4 सेंटीमीटर। आई मीन जो सेंटर का डिस्टेंस है, अगर एक का सेंटर O है और एक का सेंटर P है तो OP के बीच में 4 सेंटीमीटर है और इसका पूरा रेडियस ऑलरेडी 5 था। तो यहाँ पे दूसरे सर्कल का सेंटर फॉल कर रहा है। ओके, अब इस अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपरली अपना कंपास लेके और प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ करेंगे, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली जो इसके सेंटर के ऊपर से जाएगा, ठीक है? इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ हियर, बट अगर आप इसको स्केल से और अपने कंपास से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो O पॉइंट है वो इस दूसरे सर्कल पे फॉल करेगा, ठीक है? और ये अंदर वाले जो सर्कल का रेडियस था
ये वाला रेडियस ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यस हम ना Okay. Yes, देखो ma'am. ये P जो है ये छोटे वाले, लाइक ये थोड़ा इधर हो गया, ओके ये छोटे वाले सर्किल का सेंटर है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, विच इज 3 सेंटीमीटर। और ऐसे ही आपका बड़ा वाला सर्किल का सेंटर O है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका बड़े वाले का रेडियस हो गया, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. ओके अब हमको शो करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इनके बीच में कॉमन कॉर्ड कौन सा है, लाइक एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक कॉर्ड कॉमन है। लाइक ये कॉर्ड देखो छोटे वाले सर्किल का भी पार्ट बन रही है और यही कॉर्ड बड़े वाले सर्किल का भी पार्ट बन रही है, राइट? Ma'am. तो इस Yes, कॉर्ड ma'am. को ए बी नाम दे देते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। ओके अगर हम यहाँ पे ये प्रूव कर दें, वेट देखो अभी हमको ये नहीं पता कि जो OP है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, दिस वी डोंट नो, राइट? यस हम ना यस Yes, ma'am. ओके मृदुला अगर हम इसमें पहले ये प्रूव कर दें कि जो ये OP है लाइक दिस OP, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो हम यहाँ पे वो थ्योरम यूज कर सकते हैं ना, दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इजंट इट? तो इसको परपेंडिकुलर शो करने के लिए वी कैन डू वन थिंग, हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, लाइक इन ट्राइंगल AOP, राइट? अभी हमको ये नहीं पता दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट? क्या प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की? इफ यू हैव एनी राइट एंगल ट्राइंगल इट सेज और ये साइड x है और ये साइड y है और ये साइड z है, यस मिराज? Yes, ma'am. So by the Pythagoras theorem, it says that your x square plus y square is equal to square of the third side, isn't it? Yes. Yes, ma'am. ओके तो हम चेक करते हैं कि क्या इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। तो हम सारी साइड्स का ऐसे देखते हैं, जैसे AO है, AO का मतलब है कि 5 का स्क्वायर, राइट, विच इज 25, ठीक है। ऐसे ही हम OP देखते हैं, OP का स्क्वायर, सॉरी OP का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 16, राइट, एंड AP का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर विच इज 9। और यहाँ से हम लोग चेक करिए, देखिए 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 होता है। You just check 9 and 6 is 15 and then carry to 25, right? Yes, ma'am. So from this uh, your OP we can see like O from this नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखो BC, we can see that OP square plus AP square is equal to AO square। ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। सो द बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यस मिराज, इज दिस पॉइंट क्लियर? Ma'am. राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें आगे ये भी मेंशन करना जरूरी है दैट राइट एंगल्ड एट P। सॉरी
यानी कि जो राइट एंगल बन रहा है वो पी पे बन रहा है, एज यू कैन सी हियर, लाइक पी जो है दोनों में आ रहा है ना, लाइक ओपी में भी आ रहा है और एपी में भी आ रहा है, सो पी इज द पॉइंट जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हमना एंड मृदुला, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात समझ में आई है? Yes, ma'am. देखो पाइथागोरस थ्योरम, एक एक राइट एंगल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो छोटी साइड्स का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ इफ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट द साइड, छोटी दो साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज द कन्वर्स। यस मेराज, इज दिस पॉइंट क्लियर? मैम। ओके, तो हमने इतना शो कर दिया दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ये पता चल गया, और देयरफॉर जो हमारा OP है विच इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि लुक इन द फिगर दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, या AB नहीं, अभी AP लिखो बिकॉज हम अभी हाफ की बात कर रहे हैं, सो राइट AP। सो देयरफॉर अब हमको ये पता चल गया कि ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे थ्योरम लगाएंगे दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इजंट इट? तो इसका मतलब हुआ कि जो AP है वो हाफ हो गया आपकी फुल कॉर्ड का, AB का। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, राइट? अब हमें कुछ वैल्यूज, और हमको लेंथ निकालनी है किसकी? AB की, राइट? और यहाँ पे AP की लेंथ हमको ऑलरेडी पता है, तो बस यहाँ पर AP की लेंथ को रखो और AB की लेंथ कैलकुलेट कर लो। So AP is how much? 3 centimeters. Yes. Can you see in the figure? AP is equal to 3 centimeter. So 3 is equal to 1 by 2 into AB. So you just multiply it here. Cross multiplication is equal to AB, and 6 is equal to AB. Or you can write that AB is equal to 6 centimeters. Yes. तो AB का इसमें आपको लेंथ कैलकुलेट करना था। See the question was not tough. इसमें हमको ये नहीं पता था that OP is perpendicular, तो हमने पहले कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये दिखाया that it is a right angled triangle, तो वहां से हमारा वो एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया। अब वो एंगल हमको इसलिए प्रूव करना था बिकॉज हमको थ्योरम यहाँ पे सर्किल वाला यूज करना था that perpendicular bisects the chord, right? तो इसीलिए हमने ये वाली लाइन, हम we were able to write this line, एंड उसमें यहाँ पे वैल्यूज डाल के AB का लेंथ आ गया 6 सेंटीमीटर। हम ना, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. मृदुला, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. मेराज? नो मैम। ओके, shall we do one more question? We have 10 minutes now. If two equal chords of a circle, okay, I'm just drawing a rough figure, then I'll use a separate sheet. If two equal chords of a circle intersect within the circle, यानी ये ऐसे कह रहा है कि you have any circle, right? Two equal chords, कोई भी दो chords हैं which are equal और ये intersect कर रही हैं circle के अंदर, like this. कोई भी chord है आपका AB and your chord CD. Prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. Okay. What is a segment? अब segment पता होना चाहिए क्या होता है. What is a segment? We have already discussed, like you have a circle and you have any chord. ठीक है? तो ये सर्किल का कोई आर्क होता है. दिस इज आर्क ऑफ अ सर्किल एंड दिस इज कॉर्ड ऑफ अ सर्किल. यस मेराज? तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, लाइक दिस होल एरिया इज कॉल्ड द सेगमेंट, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो ये बोल रहा है that prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. So basically you have to show, अगर ये कोई भी point P है, right?
तो जैसे इसका एक पार्ट बन रहा है AP, ये इस दूसरे कॉर्ड के DP पार्ट के बराबर है, राइट? यू हैव टू शो दिस। एंड ऑल्सो इसका जो बचा हुआ पार्ट है PB, so this PB is equal to this CP. This you have to show here. Is this clear? Yes, ma'am. I'm going to use a separate sheet for this question. Hmm. Sorry, there's some internet issue on my side. It's really slow. All right, let's do it here. Now, figure, you have a circle, right? This is one chord and this is another chord. Please draw the figures carefully, all of you. This is your chord AB and this is your chord CD. Now, what is given? Are you guys able to hear me? Because my connection is not very stable. Yes, ma'am. Okay, so it's already given that the chords are equal. So AB is equal to CD. Yes, Miraj? Yes, ma'am. And you have to prove that your, okay, this point is P. So you have to prove that AP is equal to the corresponding part of the other chord. That means TP, right? And also PB is equal to PB and PC, right? This you have to show in this question. Now, as this is the center. Oh, अब देखो कंस्ट्रक्शन तो इसमें करना ही पड़ता है सर्किल के क्वेश्चन में। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज अल्टीमेटली आप कोई भी थ्योरम यूज करोगे, सर्किल की अभी तक हमने यही थ्योरम पढ़ी है कि सेंटर से कोई परपेंडिकुलर फॉल करता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट? तो इसका मतलब हमें पहले सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, राइट? हम ना Yes, Yes. ma'am. अब क्वेश्चन में तो बस इतना ही दिया है दैट द टू कॉर्ड्स आर इक्वल बस, और बोला है कि क्या प्रूव करना है। अब वो नहीं दिया है तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। चलो, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब ए बी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट को एम बोल लेते हैं, ठीक है? ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड ए बी। अब ऐसे ही एक परपेंडिकुलर हम सी डी के ऊपर ड्रॉ करेंगे एंड ओ एन विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी, राइट? ठीक है, अब इसमें यह भी करना होगा कि हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाएंगे। नाउ दे आर लुकिंग वेरी स्मॉल बट एनीवे, ऑल्सो ज्वाइन ओपी। ठीक है, दिस मच वी हैव डन। लेट्स डू द प्रूफ नाउ। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे दैट हमको दिखाना है ओके, इसको करके देखते हैं। Since your OM is perpendicular to on AB, right?
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स योर AM इज इक्वल टू MB. Is this clear? fine. And this is equal to half of your chord. I mean दोनों ही जो पार्ट है वो इस कॉर्ड के हाफ के बराबर है. This is my equation number 1. यहाँ पे थ्योरम लिखना जरूरी है, that perpendicular from the center bisects the chord. Okay, and similarly for the other theorem, yes, since लिखेंगे, since OM is perpendicular to OB. Now also since ON is perpendicular to CD, दूसरी chord के भी दोनों पार्ट इक्वल होंगे, so your CN is equal to ND, which is half of the full chord CD. To again same theorem. अब chords तो equal हैं, यानी कि AB is equal to CD है, right? Now since AB is equal to CD, which is given already that the chords are equal, तो इसका ये मतलब हुआ कि I mean ये parts और ये parts आपस में equal हो गए, right? Yes. So Yes, ma'am. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं that your half of AB is equal to half of CD. Fine. चलो अब इसको ऐसे ऐसे ही लिख लेते हैं डायरेक्टली. तो हाफ ऑफ AB को यहाँ से देखो, हमने क्वेश्चन 1 में लिखा है, ठीक है. तो हाफ ऑफ AB दैट मीन्स योर AM इज इक्वल टू MB is equal to, now write half of CD, see from equation number 2, which is equal to CN, which is equal to ND. Is this clear? Yes, ma'am. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो हमने ये सारे पार्ट्स आपस में इक्वल कर लिए. आई मीन एक कॉर्ड के तो हमको पता थे दैट एक कॉर्ड का हाफ पार्ट उसके हाफ पार्ट के बराबर है, बट वो दूसरी कॉर्ड के भी बराबर है, ये हमने शो कर लिया, ठीक है. ओके, अब हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे और इनको पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. नाउ आई एम राइटिंग इट हियर. सो इन ट्राइंगल OMP and your triangle ONP, right? I want to show them congruent. What I can do here is अच्छा ये तो perpendicular draw किया है, so that means your angle OMP is equal to angle ONP 90 degree. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, perpendicular है. अब line OP is common, so OP is equal to OP, ठीक है. And what is the third thing I can use here? Yes, Hamna, what is the third thing I can use here? Mridula, you tell me. Miraj. सर्किल पढ़ रहे हो तो कुछ सर्किल की प्रॉपर्टीज भी तो याद रखो. सर्किल की कोई थ्योरम यूज करो यहाँ पर. देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए या तो हम एंगल्स की बात करते हैं या हम साइड की बात करते हैं, ठीक है. एंगल्स को प्रूव आई मीन एंगल्स का सर्किल में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो ज्यादातर हम साइड्स की ही बात करते हैं, ठीक है. तो अब साइड देखो, दो साइड हम ऑलरेडी आई मीन एक OP कॉमन था तो वो हमने दिखा दिया, और एक साइड हमको ऑलरेडी okay, what other side we can use here? Ma'am, Mridula. OM is equal to ON. Okay, why? Ma'am, because they are equal chords, so right. Perpendicular. परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इससे ये कैसे प्रूव होता है कि इक्वल है? परपेंडिकुलर का मतलब तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, राइट? No, ma'am, we can use the third theorem, right? अब ऐसे थर्ड नहीं मेरे को समझ में आता है. टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ द Ma'am, थ्योरम. equal chords of a circle are equidistant from the center. वेरी गुड. इसका कन्वर्स हम यूज कर रहे हैं, दैट द chords which are equidistant from the center are equal, right? ओके हाँ ठीक है. कॉर्ड्स ऑलरेडी इक्वल गिवन था. फाइन मृदुला, यू आर राइट. कॉर्ड्स ऑलरेडी इक्वल गिवन है मिराज, तो यानी कि वो दोनों सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है. दिस इज अ थ्योरम, ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. लिखो यहाँ पे, ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ठीक है. इक्वल कॉर्ड्स
are equidistant from the center. This theorem we have used. Okay, now these triangles are congruent. So your triangle OMP is congruent to triangle ONP. Which criteria is this? SAS, 2 sides and 1 angle. Okay. Now by CPCT, हम ये वाला जो साइड है ना MP, इसको इसके इक्वल CPCT से दिखा देंगे. MP is equal to PN. Okay. अब इसको इक्वेशन नंबर 4 दिखा, make it इक्वेशन नंबर 4. चलो अभी यहाँ तक हमारे पास आ गया. Now please see again, हमको इसमें प्रूव क्या करना है. Look here, we have to prove that AP is equal to DP, right? अभी हमको सिर्फ कितना पता है that AM is equal to MB, right मिराज? Yes, ma'am. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये इक्वेशंस को ध्यान में रखिए, थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ तक लिखा सबने हम ना? मैं फिर से यहीं पे ट्राइंगल बना लेती हूँ. आई एम जस्ट ड्राइंग द फिगर ताकि आपको दिख जाए फिर से. A B C D and this is your M, right? This is your N and this is your P. Okay. Now अच्छा अगर हम now write it like this. AM is equal to ND. ये कहाँ से लिखा मैंने? From third, right? AM is equal to ND. I mean, I'm using one part of this chord and another part of this chord. ठीक है? I'm using this much part of this chord and this much part of this chord equal. Yes, हम ना? Yes, ma'am. ओके अब मैं क्या करूंगी, इस पार्ट में MP को ऐड कर देते हैं, ऐड दिस पार्ट, और इस पार्ट में PN को ऐड कर देते हैं. सो AM प्लस MP, या ऐसा करते हैं दोनों साइड MP को ऐड करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ND प्लस MP. क्योंकि दोनों साइड हम सेम चीज ऐड करेंगे ना, दो अलग अलग चीजें तो ऐड नहीं कर सकते, राइट? Okay, now can I write it like this? AM plus MP is equal to ND plus. Now in place of MP, I will use this theorem, fourth, PN from fourth. Yes, Miraj? Any problem? देखो इक्वेशन में दोनों साइड एक ही चीज ऐड कर सकते हैं. सो आई हैव एडेड MP बोथ साइड. अब सेकेंड लाइन में एक साइड MP की जगह हमने PN लिख दिया. अब AM प्लस MP मिलके पूरा क्या हो गया? AP, राइट? ऐसे ही ND प्लस PN मिलकर पूरा क्या हो गया? PD. यस, दिस इज वन रिजल्ट जो हमको शो करना था. ओके अब सेकेंड रिजल्ट क्या शो करना है? अगेन अब ऐसे ही लो दैट MB, अब जो दूसरा पार्ट है कॉर्ड का MB, ये आपके दूसरे पार्ट CN के बराबर है, ठीक है? यस मिराज? Yes, ma'am. Ma'am. अब हम दोनों साइड से MP को माइनस कर देते हैं. सो MB माइनस MP is equal to your CN minus MP. ओके अगेन अब हम इस एक MP को इस इक्वेशन नंबर 4 से चेंज करेंगे. सो MB माइनस MP is equal to your CN minus, so in place of MP write PN, right, from fourth. Okay, अब MB में से MP गया तो क्या बचेगा? Look in the figure, you have this complete MB, उसमें से MP को माइनस कर दिया, so you are left with PB, right? ऐसे ही look in the figure, you have complete CN and you have subtracted PN, so you are left with CP or PC, whatever. And this was the second thing you were supposed to prove. Please note it down. Should I scroll the screen? Yes, ma'am.
ओके जब इतना लिखो तो फिर मुझे बताना, I'll scroll it down. ये लिखा सबने given etc. Yes, ma'am. Okay. Yes, Miraj, have you written? Yes, ma'am. Okay. So I'm just scrolling down. I'm scrolling further. Okay, if you have done, you can leave the class. I think this much is enough for today. We will continue with this exercise tomorrow. Thank you, Okay, ma'am. Good ma'am. night. Thank you. Okay, thank you. Good night. Thank you, ma'am.